Good morning, students. So once again, welcome back in Social Science live class for Standard 8. Okay, and as all of you knows, beta, that we have already started with our chapter 4 in geography, chapter number 4, agriculture. Okay, and in our yesterday's live class, we have discussed some of the characteristics, some of the features from this chapter. Okay, so today we are continuing with the same chapter. Okay, so the today topic is basically the farm system. Okay, that first we will try to discuss with what is farm system, and then we will also discuss about the classification of agriculture. Now this classification of agriculture will be based on, I am again repeating it, okay? The classification of agriculture is based on, ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर है इसको हम किसके बेस पर डिस्कस करेंगे कि हाउ द एग्रीकल्चर डन, यानी खेती किस प्रकार से होती है उसके हिसाब से एग्रीकल्चर का क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया। परंतु इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आने से पहले एक छोटी सी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके, विच इज बीइंग गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। Okay, so here basically we are going to just discuss in a very short agriculture, that is what is agriculture and other activities, agriculture and other activities which are also related to or associated with agriculture. Okay, so here we are going to discuss about agriculture, then sericulture, pisciculture, viticulture and horticulture. Okay, so first is what? Agriculture. Now what is agriculture? So agriculture is the science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock. It is also called farming. Okay, so agriculture क्या है? It is the science and art of cultivation on the soil. ठीक है, सॉइल के ऊपर क्या करना? खेती करना। क्या करेंगे उसमें? रेजिंग क्रॉप्स, फसल उगाएंगे, एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। ठीक है, रियरिंग लाइव स्टॉक मतलब पालतू जानवरों को पालना। ठीक है, सो हियर लाइव स्टॉक बेसिकली व्हाट? द मिल्च एनिमल। ठीक है, काउ, बफेलो, but apart from cow and buffalo, okay, some other animal could also be reared. Okay, so that is what rearing of livestock. Okay, so the agriculture is also called as farming. ठीक है, now the next is what? Sericulture. अगला क्या है? Sericulture. Now sericulture एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक एक्टिविटी है, यानी कहीं ना कहीं उसको भी क्या खेत में जमीन पर बाकायदा परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, बट व्हाट इज सेरिकल्चर? इट इज ए कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। सेरिकल्चर क्या है? सेरिकल्चर इज ए कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म को कमर्शियल रूप से, कमर्शियल मतलब व्यापारिक तौर पर सिल्क वॉर्म को क्या करना? उगाना। ठीक है, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। तो जो किसान है वो अपनी खेती भी कर रहा है और खेती के साथ साथ पेड़ जो उसकी मेड़ है, मेड़ मतलब जो जमीन, खेती की जो बाउंड्री है उसके ऊपर यदि उसने क्या इस प्रकार के पेड़ लगा लिए कि उस पर वो क्या कर सकता है? सिल्क वॉर्म को रियर कर सकता है, तो इट विल बी एन एक्स्ट्रा इनकम। देन नेक्स्ट क्या है? पिसिकल्चर। ठीक है, नाउ व्हाट इज पिसिकल्चर? ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड। ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड। ठीक है, तो खेत है,
घर मकान है, घर मकान के पीछे क्या कर लिया, फार्मर्स ने अपनी थोड़ी सी जमीन पर ठीक आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए और उसमें क्या कर रहा है, मछली पालन कर रहा है। ओके, सो मछली पालन का जो व्यवसाय है दैट इज व्हाट, pisciculture. Okay, in many areas the farmers are doing pisciculture side by side doing the agriculture or farming. ठीक है, और बहुत सारे लोग जिनको इस पिसिकल्चर बिजनेस में काफी फायदा होता है, they could have left doing the farming and completely engaged with the pisciculture. Then viticulture. What is viticulture? Cultivation of grapes. What is viticulture? Cultivation of grapes. अंगूर की खेती करना। ठीक है, तो अंगूर की खेती क्या हो गया, viticulture. और लास्ट इज व्हाट, horticulture. Okay, so what is horticulture? Growing vegetables, flowers and fruits for commercial use. ठीक है, व्यापारिक तौर पर यानी किसी भी व्यापार के उद्देश्य से जब हम वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं या फ्रूट, सो कॉमनली इट इज कॉल्ड एज व्हाट, हॉर्टिकल्चर. गॉट इट? सो दिस इज व्हाट अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी आर रिक्वायर्ड टू discuss because it is given in our syllabus. Okay, so we have discussed about the agriculture, sericulture, pisciculture, viticulture and horticulture. Okay, now it is what, farm system. Okay, so agriculture or farming can also be considered as a entire system. Okay, so जैसे हमने इंडस्ट्री को एज ए सिस्टम डिस्कस किया था कि इनपुट्स होगा, प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट होगा. ओके, दैट इज व्हाट इंडस्ट्रियल सिस्टम वी डिस्कस्ड. ठीक है, लाइकवाइज द फार्मिंग कैन बी कंसीडर्ड एज ए सिस्टम. ओके, सो व्हाट इज फार्म system? Okay, now what is farm system? Farm system, so it involves farm system involves, now how many things the farm system involve? First is input. farm system में क्या होगा, इनपुट. इनपुट यानी पहले हमें उस सिस्टम में कुछ लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट इज द इनपुट? ठीक है, द फर्स्ट इनपुट इज सीड्स. क्या लगाने पड़ेंगे हमको, सीड्स. देन फर्टिलाइजर्स. ओके, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी. सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर. ओके, नाउ लेबर मतलब काम करने वाला व्यक्ति. ठीक है, तो चाहे फार्मर खुद क्या करे, काम करे, है ना, तो भी उसकी मेहनत तो लगी. तो यहाँ लेबर का मतलब व्यक्ति के अलावा क्या है, मेहनत. तो इनपुट में क्या होगी, मेहनत, शारीरिक मेहनत भी लगेगी. ठीक है, चाहे किसान खुद अपने खेत में मेहनत कर रहा हो या फिर वो मजदूरों को लगा करके और लेबर कर रहा हो. ओके, सो बोथ द केसेस व्हाट, इनपुट. देन व्हाट इज इट, प्रोसेसिंग. ठीक है, अगला क्या होगा, प्रोसेसिंग. ठीक है, अब प्रोसेसिंग में क्या होगा, द ऑपरेशंस. व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन? फर्स्ट इज प्लगिंग. है ना, प्लगिंग मतलब क्या करना, खेत को बखरना. फिर क्या करना, सोइंग. ठीक है ना, सोइंग मतलब बीज लगाना. सोइंग मतलब क्या करना, बीज लगाना. ठीक है, सो पहले क्या होगी, प्लगिंग होगी, बखरनी करेंगे, फिर
सीड सोइंग होगा, देन क्या करना पड़ेगा आपको, इरिगेशन, है ना, खेत में पानी देना पड़ेगा, ठीक है। यदि बारिश की फसल नहीं है, ठीक, मानसून सीजन में भी है, पर अल्टीमेटली मानसून में ऊपर का पानी आ रहा है, ठीक है। मानसून सीजन के बाद यदि फसल लगानी है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू इरिगेशन, ठीक है। देन बीच में क्या होगा, वीडिंग, क्या करना पड़ेगा, वीडिंग, ओके। और लास्ट में क्या करेंगे हम, हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो प्लगिंग मतलब खेत बनाना, मिट्टी को लूज करना, सोइंग बीज लगाना, देन इरिगेशन सिंचाई करना, पानी देना, वीडिंग मतलब उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, खरपतवार है, उसको उखाड़ना, एंड हार्वेस्टिंग, ठीक है, फसल को क्या करना है, काटना है। गॉट इट? देन नेक्स्ट इज व्हाट, आउटपुट। और क्या होगा, आउटपुट होगा, ठीक है। अब आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, ओके, व्हाट द आउटपुट यू गेट, ठीक। यदि फार्मिंग कर रहे हैं तो क्या मिलेगी, क्रॉप्स मिलेगी, ठीक। इफ यू आर रियरिंग लाइव स्टॉक, देन व्हाट यू विल गेट, वूल, व्हाट यू विल गेट, सिल्क। If you are doing dairy farming, what you will get, milk, got it, okay. और poultry products, got it. So input मतलब खेती करने में हमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या कर रहे हैं, that is input. प्रोसेसिंग में क्या होगा, प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, ठीक है। आउटपुट में क्या हुआ, क्या मिला हमको, ओके। सो वी डिड फार्मिंग, एग्रीकल्चर किया, फसल हो गई, तो क्या मिला, क्रॉप्स, ठीक है। लाइव स्टॉक रियरिंग किया तो वी गेट वूल, सिल्क और मिल्क, ठीक है, या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स वी गेट, got it. So this is what the output we get. So when it is involved the input, processing and output, then the farm system is there, okay. So the farming can be considered, agriculture can be considered as a farm system, ठीक है। एग्रीकल्चर को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, फार्म सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या क्या होगा फार्म सिस्टम में, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। व्हाट इज देयर इन फार्म सिस्टम, फार्म सिस्टम में क्या होगा, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, गॉट बेटा। सो ये फार्म सिस्टम कहलाएगा। नाउ so the next thing after the farm system that we now discuss is what, the types of agriculture, okay. Now here basically we are discussing on the farming, ठीक है, that is rearing of crops, growing of crops. अभी हम जब types of farming में बात करेंगे तो what we'll discuss about growing of crops, okay. Right, now this is what the types of farming, okay. So farming is practiced in different ways across the world, है ना। पूरे वर्ल्ड में खेती करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर,
डिपेंडिंग अपॉन ज्योग्राफिकल कंडीशन, तो जैसी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, किस प्रकार की फसल उगाई जाएगी, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी उस खेती में किस प्रकार के तरीकों का उपयोग हो रहा है, ठीक है, दैट इज वेदर द मॉडर्न इनपुट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज और मे बी द प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी इज यूज. So on the basis of all these, farming can be classified into two main types. Okay, so what are the basis for the classification of farming? What are the basis for the classification of farming? Okay, so what are the basis? Geographical condition, demand of produce, labor and level of technology. So on the basis of all these, okay, farming can be classified into two main types. Okay, farming can be classified into two main types. Okay, now the two main types of farming are, the first one A is subsistence farming. Okay, जो पहला तरीका फार्मिंग का है वो क्या है? What is the first way of doing the farming? Subsistence farming. ठीक है, फार्मिंग का पहला तरीका क्या? Subsistence farming. Got it? So this is the first way. What is it? Subsistence farming. Okay, now the second is, okay, the second is commercial farming. Okay, now subsistence farming and commercial farming. Okay beta, now commercial farming can also be called as sometimes a modern farming. ठीक है, now so subsistence farming, commercial farming. अब subsistence का मतलब क्या करना? सर्वाइव करना, यानी वो जो फार्मिंग है, इस फार्मिंग में जो फार्मिंग करने वाला है, दैट इज द फार्मर. फार्मर इस व्यवसाय के द्वारा बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता. फार्मर सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाएगा? व्हाट कुड द फार्मर कैन डू? फार्मर सिर्फ क्या कर पाएगा? सब्सिस्टेंस फार्मिंग में. तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर मात्र, फिर से बोल रहा हूं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर मात्र अपना पेट पालन कर पा रहा है, यानी उसको इतनी ज्यादा इनकम नहीं हो रही है कि वो क्या कर पाए, ज्यादा क्वांटिटी में अपनी क्रॉप को या अपने आउटपुट को मार्केट में सेल करे और उससे उसको बहुत सारी इनकम मिले. ओके, सो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी कंसीडर्ड ओनली अप टू सर्वाइवल लेवल. ठीक है ना, सब्सिस्टेंस फार्मिंग सिर्फ कहां तक के लिए? सर्वाइवल लेवल तक के लिए काम करेगी. फिर से बता रहा हूं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग सिर्फ और सिर्फ कहां तक काम करेगी? इट कुड वर्क ओनली फॉर सर्वाइवल लेवल. सिर्फ सर्वाइवल के लिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग है. ठीक है, अगेन the subsistence farming can be classified into two more categories. है, so subsistence farming को दो कैटेगरीज में और डिवाइड किया जा सकता है. That is, subsistence farming can be classified into two more categories. Subsistence farming को और दो कैटेगरीज में क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है, now what are
these two categories. ठीक है, so one is what, the primitive subsistence farming. Okay, I have only written the abbreviation for subsistence. Okay, so primitive subsistence farming. ठीक है, we'll again discuss one by one what is primitive subsistence farming, and then the next is what, the next is intensive subsistence farming. जो नेक्स्ट तरीका है, the next thing is what, intensive subsistence farming. ठीक है, so दोनों चीजें, now primitive subsistence farming and then intensive subsistence farming. Okay, so as far as concerned about the classification, यदि हम क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग की बात करें तो हमारे पास में दो क्लासिफिकेशन मिलेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज व्हाट, सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ओके, एंड सेकंड इज व्हाट, कमर्शियल फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग. ठीक, अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग अगेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू primitive subsistence farming and then intensive subsistence farming. But दोनों ही केस में, in both the cases, जो आउटपुट मिल रहा है, दोनों केस हुए है ना, चाहे वो primitive subsistence farming का हो, चाहे कौन सा हो, intensive subsistence farming. तो चाहे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इन बोथ द केसेस द फार्मर इज एबल टू गेट द आउटपुट ओनली फॉर सर्वाइवल लेवल. पेट भर रहा है, परंतु ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कमाई हो रही है, एक वेल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पा रहा है. ठीक है, बहुत अच्छा खासा मजेदार सा स्टैंडर्ड लिविंग मेंटेन हो, ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं. गॉट इट बेटा? सो दैट इज व्हाट द सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ठीक, नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन. नाउ वी विल डिस्कस अगेन इन डेप्थ फॉर ईच ऑफ द डिवीजन. ठीक है, अभी ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है, अब इसमें से हर एक को हम और अच्छे से, ठीक है, डीपली स्टडी करें. ठीक है, तो यदि हम इसको डीपली स्टडी करने जाएं तो जो पहला हमारा आ रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट, द फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. So this type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. Needs of the farmer's family, यानी किसान के परिवार की मात्र जरूरतें ही पूरी होंगी, इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा. यानी रोटी कपड़ा मकान मिल गया, दो टाइम भोजन कर सकता है, 4 जोड़ी कपड़े खरीद लेगा, रहने को छत है, परंतु उस फार्मिंग से, खेती से इतनी ज्यादा इनकम नहीं मिलेगी कि वो क्या कर सके, अपने बच्चों को किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा सके. ठीक है, 2 मोटरसाइकिल मेंटेन कर सके, एक कार मेंटेन कर सके, घर कच्चा होगा, बहुत अच्छा सा पक्का घर बंगलो टाइप का नहीं बना पाएगा. ओके, सो देन कमर्शियल फार्मिंग, फार्मर गेट अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग, सर्टेनली, बट अगेन इट डिपेंड ऑन कि हाउ मच एग्रीकल्चरल लैंड द फार्मर हैज. किसान के पास कितनी जमीन है. अब जमीन कम होगी तो आखिर फसल ही कितनी पैदा होगी. ठीक है, और उतनी जो फसल पैदा होगी, क्या उस फसल में उसकी जरूरतें पूरी होने के बाद एक्स्ट्रा फसल बेचने के लिए बचेगी क्या? ठीक, सो दैट विल डिस्कस. ओके,
when the things streamlined, एक एक करके हम सारी चीजों को समझते चले जाएंगे, ठीक है। सो अगेन द सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज व्हाट, इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। इंटेंसिव subsistence farming. Okay, so first we will discuss about the intensive subsistence farming, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस चीज को डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होगी, ठीक है। सो द फर्स्ट फीचर इज स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो सबसे बड़ा है ना स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। फार्मर के पास खेती की जो जमीन है वो कैसी है? बहुत कम है, 1 हेक्टर 2 हेक्टर मैक्सिमम, है ना। यानी 2 से 3 एकड़ 4 एकड़ से ऊपर की जमीन नहीं, ठीक। अब 3 या 4 एकड़ की जमीन में फार्मर हर प्रकार की मगजमारी मेहनत करता भी है, ठीक है, सारे मॉडर्न इनपुट्स लगाएगा, सब करेगा, परंतु क्या है, अल्टीमेटली जमीन कम होने के कारण ही विल गेट कंपैरेटिवली लेस क्रॉप्स। जमीन की मात्रा ही इतनी कम है कि कितना भी अच्छी खेती करे तब भी ओवरऑल आउटपुट कैसा है? बहुत कम है, ठीक है। गॉट इट? सो अच्छी खासी खेती करने के बावजूद भी वो ओनली किस कंडीशन में है? सब्सिस्टेंस कंडीशन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। देन सेकंड इज व्हाट? सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर, ठीक है। सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। टूल्स कैसे होंगे? सिंपल, और लेबर मतलब मशीनों से काम कम होगा। हालांकि हर काम इंसानी हाथ से नहीं हो सकता, परंतु बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स यूज नहीं कर पाएगा। टूल्स कैसे होंगे? सिंपल होंगे। ओके, सो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग व्हाट इज? The use of simple tool and more labor, ठीक है। टूल्स कैसे यूज करेंगे? सिंपल और मोर लेबर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? लेबर होंगे। गॉट इट? देन climate with large number of days with sunshine and fertile soil present, growing of more than one crop annually on the same plot, ठीक। अब क्या डिपेंड करता है? क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन। ओके, सो व्हाट इज? इफ climatic conditions suits, ठीक है। if climatic condition suits and irrigation available, okay, if climatic condition suits and irrigation available, then 2 or 3 crops are grown, है ना।
क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में यदि क्लाइमेटिक कंडीशन सूट करती है, जैसे इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ओके, अब हमारे यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन में यदि इरिगेशन फैसिलिटीज है, क्या है बेटा, इरिगेशन। अब इरिगेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि मानसून सीजन में, बारिश के सीजन में तो पानी बरसेगा, उसके बाद में पानी अवेलेबल नहीं है, तो फिर यदि खेती करनी है, देन व्हाट टू डू, ओके, द लैंड हैज टू बी इरिगेटेड, ओके, सो इफ द इरिगेशन इज अवेलेबल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन सूट्स, जैसे हमारी कंट्री का क्लाइमेट है ना, लगभग पूरे साल भर कोई ना कोई एक फसल लगाने लायक है, ठीक है, पूरे साल भर में मौसम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उस मौसम में तो कोई भी फसल नहीं लगेगी, ठीक, यानी मानसून सीजन में भी कुछ फसलें हैं जो उगाई जा सकती हैं, विंटर सीजन में कुछ फसलें हैं जो उगाई जा सकती हैं, एंड ड्यूरिंग द समर सीजन आल्सो क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, so that is all if climatic condition suits and irrigation available, then 2 or 3 crops are grown. यदि क्लाइमेटिक कंडीशन सूट करती है, इरिगेशन अवेलेबल है, देन 2 और 3 क्रॉप्स आर ग्रोन, तो फिर फार्मर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में 2 या 3 फसलें भी उगाता है, ठीक है ना। इन केस ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ इंडिया, यदि हम इंडिया की बात करें, देन इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग राइस इज द मेन क्रॉप, ठीक है, अदर क्रॉप्स विच आर ग्रोन आर wheat, maize, pulses and oil seeds, ठीक। Intensive subsistence farming is done in thickly populated areas, okay, what does it mean, it is practice मतलब की जाती है, so it is practiced in thickly, it is practiced in thickly populated, it is practiced in thickly populated areas, okay, it is practiced in thickly populated areas, okay, तो जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहां पर प्रैक्टिस होगी, यानी किन इलाकों में की जाती है, ओके, सो इट इज प्रैक्टिस्ड इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया, यानी वर्ल्ड के उन एरियाज में जहां जमीन की अवेलेबिलिटी कम है और जमीन की अवेलेबिलिटी के कंपैरिजन में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ओके, सो इन दोस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हाट इज intensive subsistence farming is done, got it beta, so now it is around 34 minutes, okay, so we would not be able to complete if we start with one more topic, ठीक है, that is the primitive subsistence agriculture, so we are winding up the sessions right now, and today we will continue with, we have already covered the intensive subsistence farming. Now when we come again tomorrow, then we will start with a primitive subsistence farming, okay, which is also called as what, shifting cultivation or nomadic herding, and then we will discuss on commercial farming, okay beta, so that's all for today class, goodbye, okay, good morning.